they can give the videos to the children, online videos. And another interesting thing, we gave them the idea, suppose the videos which they are giving to the children, it should not exceed certain limit, because the children are having the concentration span. Therefore, we gave them the idea how to trim the videos at proper places so that they can give it in small pieces, for so that the children can digest it very easily. And we gave them the idea how to prepare video files and also audio files, because the language teachers may be in need of the audio lessons, but we have given them the idea how to make audio lessons also. And not only that, now everything has become little bit interactive now, where we have given them some idea how to make interactive worksheet, and mainly using free open source softwares, so that they can make it and they can use it. Okay, now they have made a lot of material with them, they have prepared a lot of content. We gave them some idea how to arrange it, then how to store it, then how to put it in a blogger, so that they can give it to the children in a very nice way. And to be frank with you, and this Varanasi group, which is having 39 teachers, PGT is 25, PRT is 4, and TGT is 10. It is having a mixture of teachers from various disciplines. We are having some teachers from work experience, librarian, and physical education teachers also. Therefore, all of them took part in this particular course with a great interest, and 2 interactive sessions to explain their doubts also was planned, and in that they clarified their doubts. And actually every day morning we used to give them the assignments. The next day itself, more than 90% of them are submitting their assignments. And actually this is our way how it will be encouraging us to do more for them. Now, not only about this particular course is containing 26 videos, but apart from that also, we have shared some more videos with them, then how to make interactive worksheets, then how to use the Google Classroom for teaching and all. Therefore, it will not stop here, and even if you are making any other new videos, we will be sharing with them, because we are having their contact with them. It is from our side, but we want to listen from them, then how they feel about the course. For that, I invite Mr. Kamalakant Yadav, PGT Hindi from IIIT Jalwa. Sir, please. Mr. Kamalakant Yadav, you can unmute your camera also and you can talk. बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर करने की, मैं अपने अनुभव को साझा कर सकूँ। आज के इस समारोह को अतिथि श्री NR मुरली सर, डायरेक्टर जीप और डिप्टी कमिश्नर रीजनल ऑफिस मुंबई, श्री डी मणिवरन सर, डिप्टी कमिश्नर KBS रीजनल ऑफिस वाराणसी, और हमारे इस ऑनलाइन कोर्स ऑन डिजाइनिंग ई रिसोर्स के हमारे मेंटर और गाइड श्रीनिवासन सर, और हमारे सभी प्रतिभागी साथियों। एक भाषा अध्यापक होने के कारण और विशेष रूप से हिंदी का PGT मैं हूँ, और एक हिंदी PGT के लिए तकनीकी रूप से बहुत सारी लिमिट्स होती हैं, और मेरी फील्ड में मेरी दैनिक दिनचर्या का वह हिस्सा नहीं हो पाती है तकनीक से जुड़ी हुई चीजें, जहाँ पर मैं कह सकूँ कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ इन सब कार्यों को करने के लिए। लेकिन मैं अपने प्रिंसिपल सर का इसलिए आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि इस कार्यक्रम में अपने विद्यालय को रिप्रेजेंट कर सकूं, और जो चीजें हम लोगों को सीखने के लिए मिली वो निश्चित रूप से उनका कोई मान और मूल्य नहीं है। एक ऑनलाइन टीचिंग करते हुए हम लोग एक ट्रेडिशनल ढर्रे पर चल रहे थे। अभी तक जो मैं बच्चों को पढ़ा रहा था 10th 11th 12th को हिंदी सब्जेक्ट, और अब इस पाठ्यक्रम को करने के उपरांत निश्चित रूप से मेरी जो स्किल होगी, मेरी जो क्षमता होगी, निश्चित रूप से वह वही नहीं होगी जो इस पाठ्यक्रम में आने से पहले थी। तो मैं इसके लिए श्रीनिवासन सर आपका विशेष रूप से आभारी हूँ
कि आपके जो टीचिंग का जो मेथड था, जो आपने वीडियोस हम लोगों को जो 26 वीडियोस की आपने जिक्र किया, वो 26 वीडियो हमारे लिए ऐसे थे सर कि हम जिसको कुछ भी नहीं आता हो, सुन नॉलेज हो तकनीक का, वो भी अपने आप को एक बेहतर तकनीकी रूप से मजबूत इंसान में बदलने में समर्थ हो पाएगा। तो निश्चित रूप से इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। और जो भी चीजें आपने हमें सिखाई हैं, मैंने अपने स्कूल में प्रिंसिपल सर के साथ और दूसरे जो टीचर्स थे, हमारी ऑनलाइन मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में भी मैंने उसको साझा किया था। और सर ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया कि जो ही ये कोर्स समाप्त हो जाएगा, जिस प्रकार से मैंने इन सारी चीजों को सीखा है, उन सारी चीजों को मैं अपने दूसरे टीचर्स के साथ भी इसको शेयर करूंगा। और निश्चित रूप से मैं बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी थी जिनको इनिशियल उसके फॉर्म्स को मैं जानता था। कुछ चीजें जैसे वीडियोस को बनाना या उसको यूट्यूब चैनल पर अपलोड करना, या मेरे पास पहले से बना हुआ मेरा अपना ब्लॉग भी था। लेकिन उसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपने जो जो टूल्स हम लोगों को उपलब्ध कराए, वो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस बात के लिए भी नहीं सोच पाया था कि नहीं ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग जो है पावर पॉइंट बनाएं और उस पावर पॉइंट को बनाते समय हम उसमें नरेशन को भी इंक्लूड कर सकते हैं। कई बार इसको मैं एक कमी के रूप में पाता था कि अगर ऐसा कहीं हो जाता कि मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते समय जो है जो पावर पॉइंट है, या विशेष रूप से लैंग्वेज में एक आवश्यकता पड़ती है कि हम किसी भी शब्द का सही प्रोनाउंसिएशन कैसे करें, कविता को पढ़ रहे हैं तो उसको बेहतरीन ढंग से कैसे पढ़ें। तो बच्चों के सामने जब हम क्लासरूम में रहते थे तो वहां पर तो हमको एक एग्जाम्पल के रूप में पढ़ करके सुना देते थे, लेकिन किसी पैराग्राफ को, किसी सेंटेंस को, किसी स्टैंजा को, पोएट्री को पढ़ने का सही तरीका क्या होगा, उच्चारण करने का सही तरीका क्या होगा, वो हम बच्चों के पास कैसे कम्युनिकेट कर पाए अगर हम उनको कोई पावर पॉइंट दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने सीखा कि नहीं, वो भी एक तरीका है। और पावर पॉइंट को मैं वीडियो के रूप में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये भी आपने सिखाया। साथ ही साथ हम लोगों को जो स्क्रीन शॉट्स थे उनको लेकर करके हमें वीडियो बना सकते हैं। और अर्धशनी का प्रयोग करना बहुत इंटरेस्टिंग था सर। मैं जो है उसके बारे में बिल्कुल वाकिफ नहीं था कि नहीं ये भी एक सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करता है जिसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। इवन गूगल फॉर्म्स को हम लोग हमारे विद्यालय में प्रयोग किया जा रहा था। हम लोग जो क्वेश्चन डेवलप कर रहे थे बच्चों का, हर चैप्टर के बाद जो है उनके कन्वर्सेशन हम लोग कर रहे थे, टेस्ट ले रहे थे, तो गूगल फॉर्म पर हम लोग जो है उस पर कन्वर्ट कर करके क्वेश्चन बना करके हम लोग ले रहे थे। और उसको और ज्यादा इफेक्टिव कैसे कर सकते हैं वो आपने हमें सिखाया, वो बहुत यूजफुल था। और जो हॉट पोटैटो सॉफ्टवेयर का अलग अलग फॉर्म में जो यूज था, उसको उससे मैं बिल्कुल परिचित नहीं था। जैसा मैंने आप लोगों को आरंभ में कहा कि चूंकि हिंदी विषय का अध्यापक होने के कारण कुछ मेरी अपनी लिमिट्स थी, लेकिन अब ये सारी चीजें जब मैंने अपने स्कूल में जो हमारे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं या हमारे जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस है उनके साथ भी शेयर किया कि नहीं ये चीजें मेरे मतलब ये स्किल्स मेरे अंदर आ गई हैं, इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो उन लोगों को भी खुशी हुई कि नहीं मैं थोड़ा एक हेल्पिंग हैंड के रूप में दूसरे जगहों पर जो दूसरे हमारे शिक्षक हैं जो तकनीकी रूप से उतने दक्ष नहीं है, उतने मजबूत नहीं है, उनको और बेहतर बनाने में मैं मदद करूंगा। और सबसे ज्यादा फायदा जो है हमारे बच्चों का होगा। आपके द्वारा जो हमें ये प्रशिक्षण दिया गया कि मैं अपने बच्चों के साथ इन चीजों को साझा करूंगा और उनकी जो लर्निंग की प्रोसेस है उसमें एक रास्ता आ गई थी, थोड़ा सा ठहराव आ गया था। हम लोग जो डे बाय डे एक ही चीज को रिपीट कर रहे थे वो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, तो बच्चों को सीखने की जो प्रवृत्ति है वो थोड़ा और बेहतर होगी। और निश्चित रूप से जितनी एक्सपेक्टेशन आपकी होंगी हमें कि हम लर्निंग को बच्चों के साथ अपने इंटरेक्शन को जितना इफेक्टिव बना सकें उसको और बेहतर बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। और मैं जो भी एक्सपेक्टेशन रखी गई है आपकी एक सीखा हुआ ट्रेनर यहाँ से अपने विद्यालय के लेवल पर ले जाकर के दूसरे टीचर्स को और ज्यादा कैसे इसमें शामिल कर करके उनकी भी बेहतरी के लिए कार्य कर सकता है, उन सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको मैं पूरा करूंगा। और मैं पुनः जो है सिंहासन सर आपका और आपके जो टीचिंग मेथड का उसको भी बहुत मैंने सीखा। एक टीचर के रूप में मुझे कैसे अपनी बात प्रभावित तरीके से बेहतर तरीके से करनी चाहिए, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। और केंद्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय संभाग वाराणसी का भी
कि उन्होंने हमें आपके साथ जोड़ करके इस कार्यक्रम को आयोजित कराया। उनके लिए भी मैं आभार प्रकट करता हूँ और मेरा पुरस्कार धन्यवाद जी मुंबई के प्रति, जिन्होंने हमें सीखने के लिए अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Tamilnadu Yadav, we are very happy to know that we have added some fuel to your fire of learning. Okay, well, now let me call Mr. Raju, a TGT librarian from Kendra Vidyalaya Mau. Mr. Raju, please. गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज के मुख्य अतिथि परमादरणीय श्री एनआर मुरली सर, निदेशक केवीएस गेट मुंबई एवं उपायुक्त केवीएस आरओ मुंबई, और श्री डी मणिवन्नन, उपायुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन वाराणसी संभाग एवं श्री एम श्रीनिवासन, ट्रेनिंग एसोसिएट महोदय, और सभी प्रतिभागियों को मेरा सादर नमन। मैं राजू, पुस्तकालय अध्यक्ष, केंद्रीय विद्यालय मऊ, ऑनलाइन कोर्स ऑन डिजाइनिंग ई रिसोर्सेज पर अपना अनुभव प्रस्तुत कर रहा हूं। सर, हमारे कोर्स की शुरुआत 7 सितंबर 2020 से हुई। श्री निवासन महोदय द्वारा जो भी पाठ्यक्रम तैयार किया गया है वो बहुत ही अच्छा और ज्ञानवर्धक है। तथ्यों को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिससे हमें इससे संबंधित असाइनमेंट को करने में कोई असुविधा नहीं हुई। और कुछ शीर्षक मुझे सीखने में बहुत अच्छे लगे, जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विथ नरेशन और उसको वीडियो में बदलना, हार्ड पोटैटोज सॉफ्टवेयर को सीखने में भी मुझे बहुत अच्छा लगा। सर द्वारा सभी चीजें बहुत ही सरल ढंग से प्रस्तुत की गई हैं। सर ने हमारे डाउट्स को अच्छे से सॉल्व किया। अब अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी यह शिक्षा केवल हमारे तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह हमारे शिक्षक साथियों और विद्यार्थियों तक पहुंचेगी और वे लोग भी इससे लाभान्वित होंगे। यह कार्यक्रम हमें अच्छा शिक्षक और अच्छा विद्यार्थी बनाने में मदद करेगा। धन्यवाद। Thank you, Mr. Raju, for your kind words. Now I call Mr. Satyendra Kumar, TGT physical education teacher from Mankapur. Mr. Satyendra Kumar, please. धन्यवाद सर। परम सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री एनआर मुरली सर, कोर्स डायरेक्टर एवं उपायुक्त महोदय संभाग, आदरणीय उपायुक्त महोदय वाराणसी संभाग श्री मणिवन्नन सर एवं रिसोर्स पर्सन श्री श्रीनिवासन सर एवं मेरे साथीगण जो कोर्स प्राप्त कर रहे हैं। जैसा कि आप 7 तारीख से हम लोग इस पे कार्यरत हैं ऑनलाइन कोर्स के लिए, जिसमें मैं दो तीन चीज़ें मैंने बहुत इंटरेस्ट लेके किया। जैसे हार्ड पोटैटो सर ने बताया, क्विज जी बहुत ही अच्छा है, बच्चों के लिए मज़ेदार भी है। मैंने बच्चों पे अप्लाई किया तो बहुत मज़ा आया, बच्चे भी अपना इंटरेस्ट ले रहे थे। खैर मैंने पहले से ब्लॉग बना रखा है जिसमें मैं अपलोड भी कर दे रहा हूँ। H5P भी बहुत अच्छा रहा सर, जो बहुत ही उत्साहवर्धक है, बच्चों में बहुत मज़ा भी आया इसको लेकर। H5P में गूगल फॉर्म्स पे जो गूगल क्विज बनाना है वो भी बहुत ही अच्छा था। और ये सारी चीज़ें, सबसे बड़ी बात है सर कि इसमें सारी चीज़ें व्हाट्सएप पे हम शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे बच्चे ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादातर यूज करते हैं व्हाट्सएप का। ऑनलाइन में लगातार हम जैसे इंटरेक्शन करके, जैसे आप हमसे आमने सामने करते हैं, उसमें 3 या 4 या 10 बच्चे, ऐसे ही 10 बच्चे 20 बच्चे अगर हैं तो उसमें से 10 बच्चे तक ही शामिल हो पाते हैं, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम है, ग्रामीण क्षेत्र है। तो ये बहुत ही अच्छा है सर कि हम लोग कोई भी चीज़ अपना प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, पीपीटी बना रहे हैं तो उसमें शेयर कर सकते हैं। तो ये आपका हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद रहा, जिस प्रकार हमें शिक्षा इस प्रकार प्राप्त हुई है। मैं अपने प्रिंसिपल का भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने हमें इस लायक समझा, हमें भेजा। तो मैं अंतिम 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। मुश्किल तो 1000 होंगी पर मुश्किलों को आजमाना है, मुश्किल तो 1000 होंगी पर मुश्किलों को आजमाना है, चाहे जितना ऊंचा हो आसमां उसे अपने कदमों में झुकाना है। जिस तरह आपने ऑनलाइन ज्ञान से परिपूर्ण किया, जिस तरह आपने ऑनलाइन ज्ञान से परिपूर्ण किया, वो छात्रों को प्रवाहित
कर उनको योग्य बनाना है। धन्यवाद सर। Thank you, sir, for your kind words. And that also a Hindi poem during this Hindi week is going on. Thank you. Now, I sincerely thank all the participants of Varanasi region for your kind support, and may I request Honorable Deputy Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan, Regional Office, Varanasi, to bless the participants. Sir, please. Sir, your mic is mute. Sir, kindly unmute your mic, sir. Are you able to hear me? Are you able to hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So first, thank you, Mr. Mahalingam Srinivasanji. And first, I would like to thank the most respected and honorable person, Mr. N.R. Murali, Director ZIT Mumbai. I can say even he is also my guru. I feel it personally. And because of his initiatives, in the month of June, a webinar was conducted by the ZIT Mumbai. A wonderful webinar session. 5 sessions was there, and out of 5, I was extremely happy with 3 sessions. Other 2, I can grade it as very good. And through that session, I got the input that ZIT Mumbai, not ZIT Mumbai, sorry, IIT Mumbai was ready to conduct online courses for how to handle the online classes. So that was the one most advantage point I got it through that webinar. Though there are a lot of information, inputs, ideas, but this information was very helpful for me to conduct this online course of to my Varanasi region teachers. And I would like to thank very specifically our Honorable Commissioner Madam and JC Training KVS headquarters, because their help is very much required for me. Varanasi region is not the feeder region for Mumbai, it's the feeder region for Gwalior. So there were a lot of administrative process behind this conducting online courses. And what I did, I requested my principals, say I cannot select the teachers sitting at regional office. So you must be knowing teacher from your Vidyalaya. Don't label only the PGT computer science will have the chance to attend this class since it has the word online. But you can find out the teachers who are all basically very much interested, to some extent technosovi, and to some extent they will be able to conduct the training program for the remaining teachers of the respective Vidyalayas. So 3 conditions I have put to my principals. So the principals proposed all these 39 teachers. They are all basically interested. They are also techno-savvy, and they are very much interested to conduct the same training level of program to other teachers of the respective Vidyalayas. So this is the way we have selected the teachers and we have nominated for attending these classes. So I also got feedback from the teachers unofficially. It was amazing program. It's very much informative and learning and needs practice furthermore. And there are time to time the issues that a training program was monitored at ZIT Mumbai level as well as the IIT Mumbai. Assignments were given, evaluated, feedback. It was wonderfully conducted. So I am extremely happy the way the program was carried out, and hence I am once again thankful to Mr. N.R. Murali and the ZIT team Mumbai. What am I going to do? That also I would like to share with these 39 teachers. Actually, we have 36 Kendriya Vidyalayas and 3 Vidyalayas are having second shift
So even the second shift I have treated as a separate Vidyalaya. So total 39 Kendra Vidyalayas we are going to conduct the program the way it was conducted by ZIT Mumbai. And this program I am expecting that the same way I will be able to conduct for the Varanasi region within this month. And I am planning to conduct in batch wise. So for primary teachers, the trained graduates and the postgraduates, because everyone is involved in taking online classes. So every teacher should learn how to conduct. So since we are evolving and we are learning also, I hope that further training of all the teachers of Varanasi region will be very, very successful. And I have also taken all the video shared by ZIT Mumbai to all these participants. And I am also personally going